Good morning. We will continue the questions of the probability. Very few questions I have taken yesterday. Today we will take the questions, some more questions. And the question number 4. A die is thrown. Let A be the event that the number obtained is greater than 3. A be the event, number greater than 3. B be the event that the number obtained less than 5. Number obtained less than 5. Okay. Then find probability of A union B. Find the probability of A union B. Probability of A union B is the formula probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. A is a number of greater than 3 means A event having the number 4, 5, 6. B number less than 5, that is 1, 2, 3, 4. Die is thrown, then n of s is a 6. N of s is a 6. What is probability of A? N of A upon n of 6. N of s, n of A 1, 2, 3. 3 by 6. Plus probability of B, that is 4 by 6. Minus A intersection B means common is 4. Okay, only 4 is common. So A intersection B is only one element, that is 4. So n of A intersection B is 1 minus 1 by 6, it is 1. This is the one method. The answer is 1 means it is the certain event. A union B is a certainly, it is certain event. I have told you if probability of any event will be the 1, then it is called certain event. If probability of any event is 0, then it is called impossible event. So it is a certain event. माने ये होना ही है ऐसा. दूसरा मेथड ये था कि हम कुछ नहीं किए, नो फार्मूला, डायरेक्ट A यूनियन B I will find 1, 2, 3, 4, 5, 6. So probability of A union B is 6 by 6. N of A intersection A union B upon N of S. Probability of A union B is equal to N of A union B upon N of S, that is 6 by 6 comes 1 directly. This is also one of the method. सब 1 मार्क्स लायक क्वेश्चन है. The fifth one we will see, question number 5. One ticket is selected at random from 50 tickets. They are numbered 0, 0, 0, 1, 0, 2 till 49. Certainly these are the 50 numbers, 1 to 49 as well as 0, 0, that is 50. So one ticket is selected. Out of these 50 tickets, one ticket is selected means all the sample space having 50 C1 वेज. तो सैंपल स्पेस में 50 आउटकम्स होंगे.
n of s is 50. Then the probability that sum of the digit on the selected ticket is 8. Sum of the digits on the selected ticket is 8. Let E be the event that there are selected ticket is 8. E1 be the event that selected ticket has sum of digit 8. Which are possible? Just we see. 08. If 08 will appear, then certainly sum of the digits will be 8. 17, 26, 26, 35 and 44 means n of E1 is 5. Next, given that product of these digits is 0, E2 be the event that selected number has product of digit 0, Then what is the E2? 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 10. Again, from 11 to 19, the product of the digit is not 0, 20, 30, 40. If these number will appear, then certainly the product of the digit will be 0. How many are there? These are 10, 11, 12, 13, 14. N of E2 is 14. N of E1 is 1, 2, 3, 4, 5. The question is find probability of E1 under the condition E2. Find the probability of E1 under the condition E2. Means N of E1 upon N of E2. That is 5 upon... No. Probability of E1 intersects given E2. How it will be determined? Just you see. We know that probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E2 into probability of E1 given E2. Probability of E1 intersection E2 is equal to probability of E2, क्योंकि हमको E1 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. आई हैव टोल्ड यू दिस फार्मूला. तो E1 intersection E2 also calculated. E1 intersection E2. E1 intersection E2, what are the common in E1 and E2? Common is only 0.8. So N of E1 intersection E2 is 1. So probability of E1 intersection E2 1 by 50. Probability of E2 is 14 upon 50.
into probability of E1 under the condition E2, 50-50 कैंसिल हो गया. Probability of E1 under the condition E2 is 1/14. Somewhere this will be written like that. Probability of E1 under the condition E2 is n of E1 intersection E2 upon n of E2. Because this becomes n of s, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. तो if I will use this one directly, then immediately I can write it 1/14. But basic formula is, the product rule will be this one. Probability of E1 intersection E2. इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंडर दी कंडीशन. Question number 6. An urn contains 9 balls. An urn contains 9 balls, out of which 3 are red. 3 are red. Total 9 है, out of that 3 red. 4 are blue. And 2 are green. So you see that all total becomes 9 balls. Total 9 balls, out of that 3 are red, 4 are blue and 2 are green. 3 balls are drawn. From this, how many balls are drawn? 3 balls are drawn. At random without replacement. जहां भी 1 से मोर ड्रा होंगे, हमें सोचना ही है कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न. तो विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स सर्टेनली इट इज द डिपेंडेंट इवेंट. द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 ball हैविंग डिफरेंट कलर्स इज, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मीन्स हम कह सकते हैं कि 3 balls आर ड्रॉन एट ए टाइम. तो आउट ऑफ n ऑफ s क्या हो जाएगा? सिंपल स्पेस इज 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न. आउट ऑफ द 9 balls, 3 balls आर ड्रॉन बाई 9c3 ways. बाई 9c3 ways. दैट इज 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1. 2 4 the 8, 3 the 9, that is 84. 3 are different, means one is red, one is blue, one is green. One is red, one is blue, one is green. So E be the event that the selected 3 balls are of different color. So number of outcomes in this event is 3c1 into 4c1 into 2c1, that is 3 into 4 into 2. Hence probability of E is 3 into 4 into 2 divided by 84, 42, 3, 14, that is 2 to the 4, 2 7 the, that is answer is 2/7. Answer is 2/7. इसको कुछ डायरेक्ट भी लगाया जा सकता था. देखिए, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? वन इज रेड, अदर इज ब्लू एंड नेक्स्ट वन इज ग्रीन. और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिर हो सकता है आर जी बी, फिर हो सकता है बी आर जी,
BGR and GRB as well as GBR. फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, ये ऑर्डर हमने लिख दिया. फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल इज ब्लू, थर्ड इज ग्रीन. यहां क्या है? फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल इज ग्रीन एंड थर्ड वन इज द ब्लू, लाइक दैट. सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालकर प्लस कर ले. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ही बिकम फर्स्ट बॉल इज रेड मीन्स 3/9. 3/9. Second is blue, that is 4/8. Because 9 without replacement. Without replacement means less ball हो जाएंगे. Okay, this is 8. 1 ball निकल गया है. Total 8 balls are there. Out of that 8 balls, 1 red ball has been drawn. So 2 red, 4 blue, 2 green. Out of that, what is the probability of getting blue ball is 4/8 into green, that is 2/7. Similarly, this first is red, 3/9. Next is green, that is 2/8 into 4/7. एक्चुअली प्रोडक्ट इज द सेम, केवल ऑर्डर चेंज होते जा रहे हैं. डिनोमिनेटर का ऑर्डर सेम होगा तो सेम आएगा सभी. सो आई कैन राइट इट द सेम थिंग 6 times. 3 3 the 9, 4 2 the 8, 2 2 cancel, 1/21 into 6, that is 2/7. बट इससे थोड़ा सा काम लंबा होगा. आप होता क्या है, रेड ब्लू ग्रीन ही निकाल के यहीं पर आंसर लिखाते हैं आप, वो बहुत बड़ी खराब बात है. दिस इज नॉट गुड. सो बेटर है कि इफ एट ए टाइम और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हम कॉम्बिनेशंस यूज कर लेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा. अदरवाइज आप एक्सप्लेन करके करेंगे तो ये होगा फर्स्ट रेड सेकेंड ब्लू थर्ड ग्रीन, आर फर्स्ट रेड सेकेंड ग्रीन थर्ड ब्लू, आर फर्स्ट ब्लू सेकेंड रेड थर्ड ग्रीन, like that. Now the question number 8. 7th I have taken yesterday, the AP problem. कंसीडर 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल. अब समस्या आ गई. लीव टू दैट वन. अभी आई हैव नॉट टेकन रैंडम वेरिएबल एंड बर्नौली ट्रायल. तो बर्नौली ट्रायल आई विल टेक लेटर ऑन. आफ्टर दैट आई विल डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 10. ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चन. हैविंग 5 questions. A question paper containing 5 questions. Each question having 3 alternative choice. 3 alternative choice. Okay? Out of which exactly only one is correct. Only one is correct. Probability that, find the probability that student will get 4 or more correct answer. Student will get 4 or more correct answer. Out of 5 question means E be the event that out of the 5 question student will get 4 or more correct question. Means probability of E is probability of getting 4 correct answer or probability of getting
5 correct answer. Okay? More than 4 means either 4 correct answer or all the 5 questions are correct. R means union. If I will take this is event A, this is the event B, then certainly probability of E is equal to probability of A plus probability of B. Because no intersection, they are mutually exclusive event. Mutually exclusive event. So intersection part is not there. Minus probability of A intersection B 0 हो जाएगा. 4 करेक्ट, फिर वही बात. 4 करेक्ट देखिए कितने तरह से हो सकता है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट. नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ आर करेक्ट. मीन्स द 5 ways आर देयर. तो 5 into 4 करेक्ट आंसर मीन्स 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, but 1 is wrong. Out of the 3 alternative choice, 1 is correct, means 1/3 is the probability of choosing the correct answer. Probability of choosing the wrong answer is 2/3. ये 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3, ये 2/3 अपना प्लेस बदल सकता है. यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, तो हम उसको 5 इंटू कर दिए जैसा कि पहले बताया था. प्लस ऑल आंसर आर करेक्ट. दिस कैन बी डन बाई ओनली वन वेज. 1/3, 1/3, 1/3 इंटू 1/3. फर्स्ट इज करेक्ट 1/3 एंड सेकेंड इज करेक्ट 1/3. थर्ड इज करेक्ट. इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसलिए इसको हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप देख सकते हैं दिस इज 5 to the 10 upon 3 power 5. 3 power 5 means 243 plus 1 upon 243. Finally, we are getting 11 upon 243 is our correct answer. 11 upon 243 is our correct answer. Okay? Thirteen is the direct questions without calculation. They are asking, let 2 pair dice through A and B thrown simultaneously. Let 2 pair 6-faced dice A and B be thrown simultaneously. माने 2 डाइस 1 by 1 थ्रो कर गई. Even be the event that die A shows up 4. Even be the event that dice A means first dice, show the number 4. E2 be the event that dice B show the up 2. E3 is the event that sum of the numbers on both dice is odd. E3, sum of the number on both dice is odd. Okay? Then which of the statement is not true? E1 and E2 are independent first. E2 and E3 are independent. E1 and E3 are independent. And D, E1, E2
E3 are independent. तो इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन हमने बताया कि आप E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इंडिपेंडेंट होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/6, probability of E2 is also 1/6. Probability of E3, sum of the number on the both the dice are odd. इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। बोथ द नंबर्स आर ऑड मीन्स आइदर 1 तो आ नहीं सकता, 1 1 1 2 1 6 सो ऑन, तो इसमें आ जाएगा आपका 1 2 1 5 नहीं 1 4 1 6, 2 के साथ क्या आएगा 2 1 2 3 2 5, 3 के साथ 18 आएंगे, 3 के साथ आएगा 3 2 3 4 3 6, 4 के साथ 4 1 4 3 4 5 एंड 6 के साथ 6 1 6 3 एंड 6 5। Sum on the face of the dice is, तो probability of E1 intersection E3 is 18/36, that is half. इससे कोई लिंकिंग नहीं है। E1 पर क्या नंबर आया, सेकेंड डाइस जब थ्रो किया, उसका कोई भी इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा। मीन्स E1 E2 आर इंडिपेंडेंट। E1 पर क्या नंबर आया उसका E2 के साथ कोई मतलब नहीं है, माने ये तो ट्रू है। E2 E3 आर इंडिपेंडेंट, ये तो नहीं होगा भाई। E2 पर क्या आया, पक्का है कि सम इज E2 का इफेक्ट E3 पर होगा। E2 का इफेक्ट यदि E2 पर 2 आ गया है तो E3 होने के लिए कंपलसरी है कि अगला नंबर आड ही आना चाहिए। तो E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो E1 E3 भी नहीं है। E1 पर 4 आ गया, E3 सम आपका आड आना चाहिए, तो नॉट ट्रू में आ गया E1 E2 E3 आर इंडिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। क्योंकि ये दोनों भी फॉल्स हैं, ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो केवल एक स्टेटमेंट इसमें ट्रू है कि E1 E2 आर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंसी जरूर समझें कि E2 E3 व्हाई नॉट डिपेंडेंट। E2 पर 2 आया तो E3 अब कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन लग गई, E3 माने पहले वाले पर आड ही नंबर होने चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि ये इवन था। E1 E3 भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि E1 पर 4 आ गया, पहले डाइस पर 4 आया, E3 था सम आड होना चाहिए। अब वहां कंडीशन लग गई कि हमको सेकेंड डाइस पर केवल आड नंबर ही आना चाहिए। An integer is chosen from 1 to 10, from the number 1 to 10. An integer माने our sample space is out of these numbers 10, one number is chosen.
So n of s is 10c1. Out of 10, any one will be chosen by how many ways? 10 ways. And it is squared. Then find the probability that the last digit of the square number is 1 or 5. The question number 18 was here. चूजन नंबर का स्क्वायर किया गया. ई माने क्या है? ई बी द इवेंट दैट द चूजन नंबर स्क्वायर देन द लास्ट डिजिट इज 1. यूनिट डिजिट इज 1. तो इफ द नंबर इज चूजन 1 देन इट्स स्क्वायर इज 1. सो आई कैन से 1 इज करेक्ट. If 1 is chosen, then certainly the square number having unit digit 1. But 2, not possible. 3 का स्क्वायर 9, no. 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट इज 6. हमें 1 और 5 चाहिए केवल. बट 5, स्क्वायर ऑफ 5 इज द 25, यूनिट डिजिट इज 5. सो इट कम्स अंडर ई. हमारे इवेंट को, हमारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा 5 आए पर. फिर 6 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, लेकिन 9 इसको सेटिस्फाइड करेगा. आप देख रहे हैं 9 का स्क्वायर 81. तो दैट इज ओनली 3 नंबर्स आर चूजन. देन सर्टेनली आफ्टर स्क्वायरिंग इट यूनिट डिजिट गेटिंग आइदर 1 और 5. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 3/10. 3/10. Now the next number, question 19. A and B are events such that probability of A is X. Probability of B is Y. Probability of A intersection B is Z. Then find the probability of A complement intersection B. Probability of A is X. Probability of B is Y. Probability of A intersection B is Z. A complement intersection B की पूछा है. अब है क्या, हमको ए बी के बारे में बताया ही नहीं. या तो एक्सपेरिमेंट दिया होता तब हम समझ सकते थे कि ये डिपेंडेंट है कि इनडिपेंडेंट है. सो मेनी टाइम्स आई फाउंड दैट द स्टूडेंट विल राइट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज 1 माइनस एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज वाई. 1 माइनस एक्स इंटू वाई लिख के आ गए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. But it is the only condition. कब? When they are independent. Then only probability of A intersection B is probability of A into probability of B. But here it is not given they are dependent, they are independent or what. वैसे क्लियर है कि they are dependent. कैसे? यहां से देखिएगा A and B की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी x इंटू वाई हो जाती यदि इंडिपेंडेंट होते. तो ये तो क्लियर हो गया कि यह इवेंट ए और बी डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो बड़ा मुश्किल काम है. हम देखिए सेट से इसको तुरंत करेंगे. आपको ए बार इंटरसेक्शन बी शो करें. दिस इज ए, दिस इज बी. ए सेट माने ए इवेंट बी इवेंट. ए कॉम्प्लीमेंट्री. ए कॉम्प्लीमेंट्री माने अदर देन ए इन द सैंपल स्पेस. ये सेट कर दे रहा हूं, देखिएगा. इसीलिए वेन डायग्राम आपको 11th में बहुत डिटेल पढ़ाया जाता है, जिससे आप क्लियर कर लें ये सब फाइंड आउट करने का.
अदर देन ए इज आवर, ये जितना शेडेड पोर्शन किया वह ए कॉम्प्लीमेंट है, माने ए कॉम्प्लीमेंट हमारा इस तरह से शेड है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। और बी आपको शो है इंटरसेक्शन, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी का जो कॉमन पोर्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी में जो कॉमन पोर्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट पूरा शेडेड है, बी देखिए ये है, तो केवल कॉमन पोर्शन हमारा ये रेड वाली जो क्रॉस किया हूं यही बचा, वही है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये शेड भी देखिए, ये हमारा जो पोर्शन आया ये वाला ऐसा वाला जो होगा वो दोनों में आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब बी में से, बी की प्रोबेबिलिटी में से इस पोर्शन को ये इंटरसेक्शन बी कहते हैं, कॉमन वाला ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला एरिया, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया जाए, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी that is y minus z. Probability of b is a y, probability of a intersection b is a z. तो ये वेन डायग्राम शो होना कंपलसरी है, इसकी आपको आइडिया होनी चाहिए, अदरवाइज so many times I found that the student will write probability of a bar into probability of b, that is 1 minus x into y they have written. Why not this? Because they are dependent event. It is clear from here. Probability of A is x, probability of B is y. If they are independent, then no need of probability of A intersection B, or it will be given probability of A intersection B is equal to x into y. Next question, question number 20. A box contains 10 good articles and 6 with defect. माने 10 गुड आर्टिकल्स हैं, 6 उसमें डिफेक्टिव आइटम्स मिक्स्ड हैं। ये बॉक्स है, इसमें 10 गुड आइटम्स हैं और 6 जो है डिफेक्टिव आइटम्स है। ओके, 1 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर गुड और इट इज डिफेक्टिव? 1 आइटम इज सेलेक्टेड, देन आइदर दे आर गुड और डिफेक्टिव। अरे भाई, 2 ही तरह के बॉक्स में आइटम ही थे, तो यह एक सर्टेन इवेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? 1। ये तो डायरेक्टली निकल गया। अदरवाइज हम ले सकते थे, लेट E1 बी द इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी, E1 बी द इवेंट दैट द सेलेक्टेड आइटम इज गुड, सो n of E1 is 10. Out of the 10 good items, any one will be selected, then that can be selected by 10C1 10 way. E2 be the event that the selected item is defective, so n of E2 is a 6. Probability of E, that is probability of E1 plus probability of E2. Because E1, E2 are mutually exclusive event, so no intersection portion. Why?
If item is good, then certainly it is not defective. If it is defective, then it is not good. Means if E1 will occur, then E2 will not occur. If E2 will occur, then E1 will not occur. So probability of E1, that is 10 by 16, probability of E2 6 by 16, that is 16 by 16 comes 1. But no need, directly it can be written as it is a certain event, so its probability is 1. Why certain? Box containing only two type of the items, either good items or defective items. So anyone will be selected, then certainly in your hand the selected item is either good or defective. Question number 22. If the probabilities that A and B will die within a year, there are two persons A and B. A will die within a year are P and Q. माने probability of the person A will die is given as P and probability of B will die, that is Q. Follow? There are two persons A and B. Within a year, the person A will die is given as its probability P. B will die within a year, its probability is Q. Find the probability that after 1 year only one of them will survive. After 1 year only one will survive. If E be the event that after 1 year only one will survive, means A will survive, B will die. A will survive, probability is P, survive 1 minus P because it is probability to die. A will survive, B will die. Or B will survive, A will die. Certainly it is P plus Q minus 2PQ. A will survive, B will die. B will survive, A will die. Probability of A complement 1 minus P and probability of B complement 1 minus Q. Complement means they will survive because this is the probability to die. So the answer is P plus Q minus 2PQ. Question number 23. The rifleman take one shot each of the same target. The probability of first rifleman hitting the target is 0.4. Let E1 be the event that first man hit the target. So it is given probability of E1 is 0.4. Probability of E1 is 0.4. The probability that the second rifleman hit the target is 0.4. E2 be the event that second man hit the target. So probability of E2 is given 0.5. The probability that the third man will hit the target, so these three things are given, is 0.8. ये तीनों गिवन है हमें कि फर्स्ट मैन हिट द टारगेट 0.4, second man hit the target 0.5, the third man hit the target 0.8. The probability of exactly two of them will hit the target,
Find the probability that the exactly 2 will hit the target. E be the event that exactly 2 will hit the target. Exactly 2 will hit the target means 1 will hit, second will hit, and third not hit the target. ओके एक केस हो सकती है आर फर्स्ट मैन विल हिट द टारगेट, सेकेंड मैन डज नॉट हिट द टारगेट एंड थर्ड विल हिट द टारगेट. ये एक दूसरी केस हो सकती है. थर्ड केस ये हो सकती है फर्स्ट मैन विल नॉट हिट द टारगेट, सेकेंड विल हिट द टारगेट and third will hit the target. First hit, second hit, third not hit. First will hit, second not hit, third will hit. First not hit, second hit, third hit. आप देखिए these are the cases to exact 3 of that 2 will hit the target. All are given. E1 is 0.4, E2 is 0.5, E3 complement 1 minus 0.8 plus first will hit probability of E1, second not hit 1 minus 0.5, third will hit 0.8. 1 minus 0.4 into 0.5 into 0.8. बस केवल सॉल्व करना रह गया कैलकुलेशन वर्क. 0.20 into 0.2 plus 0.4 into 0.8, 0.32 into 0.5, 0.6 into 0.40. Okay. This is 0.040, 0.160 plus 0.240. Okay. This is 0.440. 240, 0.16, that is 0.400 plus 0.040, 0.440, or I can say only 0.44. So exactly 2 will hit the target has the probability 0.44. Uh, 25th is very good question. थोड़ा सा लीक से हटके. One mapping is selected at random. One mapping is selected at random from all the mapping from set A, B, C, D, from set A, that is A, B, C, D, to the set B, X, Y. Set A is A, B, C, D means 4 elements. Set B having the 2 elements X, Y. The probability that the selected mapping is onto, selected mapping is onto. पहले तो total how many mappings are possible here. Means how many ways? A has the image by 2 ways. Image of A may be either X or Y. Similarly, image of B is either X or Y, 2 ways. Image of C is also by 2 ways. Image of D is also by 2 ways. So total number of mapping possible
from A to B, that is n of s, 2 into 2 into 2 into 2, that is 16. हमने एक्सप्लेन भी किया कैसे मैपिंग माने इमेज होनी चाहिए ए में हैव द इमेज बाई टू वेज. हाउ टू वेज? ए की इमेज या तो एक्स होगी या तो ए की इमेज वाई होगी. सिमिलरली बी की इमेज भी आइदर एक्स होगी और वाई होगी. सी की इमेज आइदर एक्स होगी और वाई होगी. ऐसे ही डी की भी इमेज एक्स और वाई होगी. E be the event that the selected mapping is onto. onto का मतलब onto मैपिंग भी आपको समझ में आनी चाहिए. मीन्स दोनों B के दोनों एलिमेंट्स किसी न किसी के इमेज होने चाहिए. किसी न किसी के इमेज होने चाहिए. इसका मतलब दो इमेज हट गई, दो मैपिंग हट गई. उनमें से कौन सी हट गई? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए हैज द इमेज एक्स, ये हट जाएगी. दूसरा क्या हट जाएगा? ऑल द इमेज ऑफ सेट ए हैज द इमेज वाई. अदरवाइज क्या होगा? इस यदि दो नहीं आया माने कांस्टेंट मैपिंग नहीं आई तो पक्का है माने ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स. कौन सी दो हटेंगी? ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स. एक मैपिंग ये हट जाएगी एंड दूसरी कौन हट जाएगी? ए वाई बी वाई सी वाई एंड डी वाई. ये दो इमेज, दो मैपिंग के अलावा यदि हम इसको F1 कह रहे हैं और इसको F2 कह रहे हैं तो आउट ऑफ ऑल दीज 16 मैपिंग्स these two are not onto, otherwise all are onto. So कितनी onto मैपिंग बनी? n of E 16 minus 2, that is 14. So the probability of E become ne by ns, that is 14 upon 16, 7 by 8. Okay. देखिए यहां पर मैं, ये तो चार ही थे, हो गया 2 into 2 लिख देंगे. एलिमेंट ए हैज इट्स इमेज बाई टू वेज, वाई टू वेज आइदर एक्स और वाई. सिमिलरली इमेज बी, एलिमेंट बी इज हैविंग टू इमेज आइदर एक्स और वाई. सो ऑल फॉर टू, सो टोटल आ जाएगा. लेकिन यदि होता ए, यहां पर एक थोड़ा सा मैं जनरलाइज कर दूं, x1 x2 x3 so on xm are m elements, are m elements. B y1 y2 y3 so on yn, यहां n एलिमेंट्स ले रहा हूं, आर n एलिमेंट्स. ये मैपिंग F फ्रॉम A टू B, ये मैपिंग F फ्रॉम A टू B. तो नंबर ऑफ मैपिंग पॉसिबल is n to the power m, n to the power m, n to the power m. कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सिंस x1 of set A may have n ways of images. हाउ n ways? x1 की इमेज या तो y1 होगी एक वे, या तो y2 होगी, या तो y3 होगी, या तो yn होगी. ठीक है. x1 की इमेज कोई भी आउट ऑफ द n वाइज एनी वन में बी पॉसिबल. सिमिलरली
x2 of the set A may have n ways images. क्योंकि x1 x2 दोनों सेम से हो सकते हैं, दोनों की इमेज सेम हो सकती है, समझ में आई बात। लेकिन x1 ऐसा नहीं हो सकता कि x1 की इमेज y1 भी हो, x1 की इमेज y2 भी हो। x1 की इनमें से दो एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकती, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन के लिए कंपल्सरी है कि x1 की जो इमेज है वो इनमें से किसी एक के साथ हो सकती है n वेज, x2 की भी इन्हीं में से भी किसी एक के साथ हो सकती है, एंड सो ऑन। xm हैज n ways. So total number of mapping means certainly all will having the image, तभी मैपिंग कहेंगे। all of the gx having the images, so total number of possible ways of the images is n into n into n. How many times? m times. Okay. तो मैपिंग में एक नई चीज जानते रहें कि डोमेन हैविंग m एलिमेंट्स, कोडोमेन हैविंग m एलिमेंट्स, देन टोटल नंबर ऑफ मैपिंग पॉसिबल फ्रॉम A to B डोमेन टू कोडोमेन इज द n to the power m. आगे देखिए, एक इसी पर क्वेश्चन और है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, जनरल हो गया। वन मैपिंग इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द मैपिंग फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ए 1 2 3 till so on n टू द सेम सेट, माने ए टू ए यहां पर डिफाइन हुआ है फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग पॉसिबल n to the power n to the power n, क्योंकि बताया था कोडोमेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन यही ना नंबर ऑफ मैपिंग्स थी, अभी बात हुई थी। तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन भी n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन इज n, so n of s is n to the power n. अब the selected mapping E be the event that the selected mapping is 1 1. E be the event that is 1 1. 1 1 1 1 मैपिंग किसको कहते हैं? वन एलिमेंट ऑफ डोमेन इज हैविंग द इमेज ऑफ वन एलिमेंट इन कोडोमेन ओनली। तो यहां देखिए, वन कैन इमेज ऑफ वन may be by n ways। यदि हम वन के इमेज की बात सोचें तो वन की इमेज कुछ भी हो सकती है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, सो वन n हो सकता है, तो n वेज। बट इमेज ऑफ 2
may be by n minus 1 ways. Why n minus 1 ways? 1 की जो इमेज थी वो अब 2 की इमेज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 1 1 है। 1 element of the domain is having only 1 element of the codomain. 1 का 1 से करेस्पॉन्डेंट 1 और 2 दोनों की इमेज एक ही नहीं हो सकती। इसका मतलब 1 की जो इमेज हो गई है उसकी इमेज अब 2 वाली नहीं हो सकती, तो वो एक हट गया। सिमिलरली इमेज ऑफ 3 may be by n minus 2 ways, and the last image of n, अंतिम में जो एक एलिमेंट बचेगा वही वाला केवल हो सकता है। सो n ऑफ e इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 so on into n, that is factorial n ways. यानी 1 1 जो इमेज बन सकती है, 1 1 फंक्शंस कितने बनेंगे? फैक्टोरियल n। टोटल फंक्शंस कितने थे? n पावर n। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n। या तो ये आंसर छोड़ा जा सकता था, या इसमें से n बाहर ले लें, फैक्टोरियल n माइनस 1 कर दें डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। सो फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन n टू द पावर n माइनस 1। फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन n टू द पावर n माइनस 1 is the probability of selected mapping is 1 1. Probability of selected mapping is 1 1. Question number 28. A1, A2, A3, so on, A50. A1, A2, A3, and so on, A50 are such that A1 less than A2 less than A3 and so on A50 are 50 real numbers. Means these are arranged in the which order? Increasing order. A1 सबसे छोटा है, A50 सबसे बड़ा है। Out of these numbers 5 numbers are selected. Out of these numbers 5 numbers are selected. तो n of s simple space means out of these 50 numbers 5 numbers are selected by how many ways? 50c 5 ways. Since out of these 50 numbers A1, A2, A3, so on A50, any 5 may be selected by 50c 5 ways. So n of s तो आ गया। E be the event, माने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? देखिए, find the probability that the 5 selected number have A20 as middle number. A20 as middle number मीन्स A20 की पोजीशन इन्होंने फिक्स कर दिया कि ए तो सेलेक्ट होगा ही और थर्ड पोजीशन पर रहेगा। ठीक है, इसके पहले 2 नंबर, इसके बाद के भी 2 नंबर, तो A20 तो हो गया, इसके पहले वाले 2, इसका मतलब A20 से पहले कितने नंबर हैं? 19 नंबर्स हैं। आउट ऑफ द 19 नंबर्स 2 कैन बी सेलेक्टेड
19C2, 20 के बाद कितने नंबर्स बचे? 30। तो इस 30 में से यदि 2 नंबर आए तो पक्का है अरेंज होने पर A20 हमारा मिडिल में आएगा। अरे जो नंबर 4 है, एक नंबर तो फिक्स हो गया A20, जो 4 सेलेक्ट होने हैं वो 4 A1 से A19 के बीच वाले 2 होने चाहिए, A21 से लेके A50 तक के बीच वाले में से 2 होने चाहिए, तभी A20 हमारा मिडिल में पड़ सकता है। तो टोटल एन ऑफ ई क्या हो गया? 19C2 इंटू 30C2। अब प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाएगी यानी बाई एन एस, यानी बाई एन एस। या तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आंसर छोड़ा जा सकता था, क्योंकि 50C5 जो होगा वो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। 19, ये 20 वाले 2 तक वाले तो बड़े आसानी से आ जाएंगे। ये तो आ जाएगा 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 19 इंटू 9। 30C2 हो जाएगा 30 इंटू 29 बाई 2 माने 15 इंटू 29। लेकिन ये नंबर देखिए बहुत बड़ा है, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46, 5 हो गए अपान 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये आएगा। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल होगा, ये 10 आ जाएगा, 4 3 12, 6 आ जाएगा, 4 3 12 टू 24, सीधे सीधे 2 कर दीजिए इसको, 4 3 12 टू 24, 24 को 48 से कैंसिल किया, 2 आ गया। अब आप इनमें से देखिए कौन से कैंसिल होंगे कौन से नहीं होंगे। जो कैंसिल होंगे, कैंसिल करने के बाद आप सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई टू दीज थिंग्स। मैं तो इसी पर फेथ करूंगा कि ये छोड़ दिया जाए 19C2। यदि फाइंड माने प्रूफ नहीं करना है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। यदि 3 तक आए तो ठीक है, कैलकुलेट कर लिया जाए, उससे ऊपर आ रहा है सो आई कैन लीव द आंसर एट द सेम प्लेस। देखिए एक और क्वेश्चन 31। लेट X बी द सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट X इज M। गिवन है X इज द सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट X इज M। The probability of selecting 2 different subsets A and B of X, A and B of X, such that A is equal to B, such that A is equal to B is टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पढ़ा होगा आपने सेट्स के समय, तो n ऑफ S हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम सेट X 2 to the power M। अब आउट ऑफ दैट 2 to the power M सेट्स, there are 2 to the power M subsets. Out of that 2 are selected, so ये आ जाएगा 2 to the power M C2, 2 to the power M C2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 to the power M, 2 to the power M minus 1
divided by 2. nc2 n into n minus 1 by 2. क्लियर हुआ ना? n ऑफ x तो हमने टोटल नंबर ऑफ सेट्स फ्रॉम x, set x, 2 are selected. 2 are selected. तो out of these 2 selected, both are same. बोथ आर सेम तो 2 to the power m वेज ही हो सकता है. हाउ मेनी वेज? जितने एलिमेंट्स थे, जितने सबसेट्स थे, उनमें से दोनों इक्वल हों. दोनों इक्वल होने की क्या पॉसिबिलिटीज है? यदि आप सेम सेलेक्ट करेंगे तो माने जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही सेलेक्ट होंगे, तो n ऑफ e हो जाएगा 2 to the power m. Hence the probability is n e by ns 2 to the power m upon 2 to the power m 2 to the power m minus 1 into 2. That is 2 upon 2 to the power m minus 1. 2 upon 2 to the power m minus 1. Okay? थोड़ा सा मैंने सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो बहुत ध्यान से आपको करने हैं. इसके बाद फिर बाइनॉमियल थ्योरम पर ही क्वेश्चंस हैं, उसको मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं. नाउ 34. 3 different numbers are selected. 3 different numbers are selected from the set A 1 2 3 so on 10. These are 10 numbers. Out of 10, 3 are selected. Means our experiment is out of these 10 elements, any 3 will be selected. So n of s is 10c3, 10 into 9 into 8 divided by 3 to 1. 3 3 the 9, 2 4 the 8 comes 120. n of s is 120. The probability that product of two of them, product of E be the event, product of two of them is equal to third. Is equal to third number. जो 3 सेलेक्ट हुए उस 3 में से हमें क्या बनने हैं? ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनमें 2 का प्रोडक्ट तीसरा आए. ठीक है ना? 2 का प्रोडक्ट तीसरा आए. जैसे 2 3 6 सेलेक्ट हो गया. एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि 2 3 6 ये सिलेक्शन यदि हो रहा है तो सही है. 1 2 के साथ हो नहीं सकता. हम 2 नंबर को चूज करेंगे. देखिएगा कैसे मैं बना रहा हूं. ई टोटल बनाऊंगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट काम था इसमें. ये 120 बनाने का तरीका मैं बताऊं. 1 के साथ 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10. तो 1 के साथ तो कोई भी ऐसे 2 नंबर नहीं हैं जिनका प्रोडक्ट थर्ड आ जाए. क्यों? यदि 1 2 सेलेक्ट हुआ तो थर्ड नंबर 2 चाहिए. हो नहीं सकता. 1 3 है तो प्रोडक्ट 3 चाहिए. नहीं हो सकता. सो ऑन. 1 10 है तो 10 चाहिए. नहीं हो सकता. तो हम 2 से कॉम्बिनेशंस लेंगे. 2 3 के साथ क्या आएगा? 2 3 6. 2 3 6. एक पॉसिबिलिटी ये है. आप देखिए 2 का प्रोडक्ट तीसरा है. 2 4 आ सकता है. 2 4 8 सही है.
2, 5, 10 सही है। देखिए ऐसा ही देते हैं कि आप आसानी से बना सकें। 2, 6 के आगे वाला आएगा नहीं, क्योंकि 2, 6, 12, 2, 7, 14, तो डोंट थिंक कि 2 के साथ और कोई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब 3 के साथ देखेंगे हम, 3 के साथ ये देखें तो 3, 4 नहीं होगा, 3, 5 नहीं होगा, नहीं हो सकता। 4 के साथ नहीं होगा अब, क्योंकि 4 आगे ही हम चेक करेंगे, तो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E is 3/120, that is 1/40। देख के लगता था अरे कैसे बनेगा, लेकिन जब आप 1 by 1 थिंक ओवर करेंगे तभी हो सकता है। 1 के साथ जो हमारे 10 कॉम्बिनेशन हैं नहीं आ सकता। ऐसा कोई 3 नंबर नहीं मिलेंगे कि 1 के साथ उनका प्रोडक्ट ऐसा आए कि जिसमें तीसरा नंबर दोनों का प्रोडक्ट हो। तो हम 2-2 करके सोचे, माने 10C2 में कुल मिलाकर के हमारे पास 45 केसेस ही रहेंगी। आउट ऑफ दैट 45 में से केवल हमें ये 3 ऐसे मिलेंगे जिनमें 2 का प्रोडक्ट तीसरा हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज 1/40 ओनली। ओके, एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन देखिए। A natural number x is selected at random from the set 1, 2, 3, 4 till 50। A natural number x माने x सेलेक्ट हुआ है इसी 50 में से कोई एक। सो n ऑफ यस तो पक्का है 50C1, इस 50 में से कोई भी एक सेलेक्ट होना है, इसका मतलब 50 वेज होंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज ए रियल नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए सोचने में बड़ा टेढ़ा लगा, करे यार यक्स क्या क्या नंबर, इन्हीं में से नंबर लेने हैं हमें। एक तो ये हुआ कि हम सोच लें पहले एक एक करके। ई में देखें, ई बी द इवेंट दैट द सेलेक्टेड नंबर फ्रॉम 1 to 50, दिस क्वांटिटी बिकम ए रियल नंबर। 1 पर देखिए, 1 - 5 निगेटिव निगेटिव निगेटिव, रियल नंबर नहीं होगा। मैंने 5 से नीचे के नंबर पर तो ये होगा ही नहीं, आप देख सकते हैं। 2 रखेंगे तो भी निगेटिव निगेटिव निगेटिव, 3 रखेंगे तो भी निगेटिव निगेटिव निगेटिव, 4 पर भी वही आ रहा है। माने यदि तीनों निगेटिव हो गए तब तो वह पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। लेकिन 5 हो सकता है, तो ई में एक तो यदि 5 सेलेक्ट हुआ है तो पक्का है कि यह क्वांटिटी रियल नंबर होगी। अब 6 देखें, 6 भी पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यह निगेटिव है। माने 2 निगेटिव होंगे तो भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 निगेटिव चाहे मल्टीप्लाई करूं चाहे डिवाइड करूं तो पॉजिटिव बन जाएगा। रूट के अंदर पॉजिटिव माने रियल नंबर। तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बड़ा ध्यान से समझें, 15 पर एक दिक्कत है, डिनोमिनेटर 0। तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर 0 पर डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकते, 15 नहीं होगा। अब उसके आगे देखें हम, 16 नहीं हो सकता, क्योंकि 16 में यह पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, नहीं हो सकता। 17 में भी नहीं होगा, देख रहे हैं 17 में यह पॉजिटिव, एक निगेटिव आ रहा है। 18 में नहीं होगा, 19 में नहीं होगा, 20 पॉसिबल है।
20 के बाद ये चलें तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, से लेके 50 तक इतनी पॉसिबिलिटीज है। तो यानी आप ई में कुल कितने नंबर हुए? 5 से लेके 14 तक ये 10 हुए, 10 हुए ना, प्लस 20 से लेके 50 तक 31 हुए, that is 41. So probability of is 41 by 50. 41 by 50. ध्यान देना है, एक तो मेथड ये रहा कि 1 by 1 हमने चेकिंग कर लिया, पूरा ई लिख डाला और काउंट कर लिया, लेकिन हम ऐसे ना करें। देखिए पॉजिटिव कब होगा, ये एक कंडीशन तो तीनों पॉजिटिव, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। इस तीनों में सेटिस्फाइड करने वाला x ग्रेटर देन 20 हुआ। x यदि ग्रेटर देन 20 है तो 100% है कि हमारे पूरे नंबर्स, तो डायरेक्ट हम एक एक चेक ना करके 20 से ऊपर वाले लिख देंगे। देयर आर हाउ मेनी नंबर्स? 31 नंबर्स। दूसरा लेंगे, अब इनमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए और बाकी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। एक निगेटिव माने x लेस देन आर इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 20। तीनों को सेटिस्फाइड करने वाला क्या मिलेगा? लेस देन आर इक्वल टू 5 नहीं, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन ना, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ये दोनों निगेटिव, ये दोनों निगेटिव। इनको सेटिस्फाइड करने वाला कौन सा नंबर मिला भाई? ग्रेटर देन 5, लेस देन 15, मीन्स x में भी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो आपको यहां लिख देंगे x में भी 5, 6, 7, बस काम खत्म। ये दोनों लाइन से हमारा काम खत्म हो जाएगा। लिख देंगे कि दिस रूट टर्म बिकम पॉजिटिव, केस 1, ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर पॉजिटिव, ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर पॉजिटिव। तो ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 5 हो, x ग्रेटर देन 20 हो, x ग्रेटर देन 15 हो, इस तीनों को सेटिस्फाइड कर, ऑल दी 3, दिस एंड दिस एंड दिस, माने तीनों को सेटिस्फाइड करने वाला मुझे x चाहिए, तो केवल ग्रेटर देन 20 मिला। एनी वन इज पॉजिटिव, अदर 2 इज निगेटिव, एनी वन इज पॉजिटिव, अदर 2 आर निगेटिव। तो पहला हमने लिया x माइनस 5 ग्रेटर देन पॉजिटिव, दीज 2 आर निगेटिव, माने x माइनस 5 निगेटिव तो x लेस देन 15, x माइनस 20 निगेटिव, x लेस देन आर इक्वल टू 20। तो अब आप जब इस पे लिए तो इस तीनों को सेटिस्फाइड करने वाला नंबर ग्रेटर देन 5, लेस देन 15, ग्रेटर देन 5, लेस देन 15, इस तीनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये दूसरी केस। तीसरी केस में नॉट पॉसिबल, माने x माइनस 20 निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, पॉसिबल ही नहीं है। यदि x माइनस 20 निगेटिव होगा तो पक्का है कि ये दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। तो इसलिए अदर 2 कंडीशंस नॉट पॉसिबल तुरंत आ जाएगा। या दूसरा मेथड हमने बताया कि 1 by 1 चूंकि 50 ही थे इसलिए चेक भी कर सकते थे, ये वैल्यूज आ जाएंगी, काउंट कर लेंगे। ओके, थैंक यू भाई। कल मैं आपको रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू।